Hi guys, good evening. Right now it's about 18 minutes past 6 p.m. and today is 16th of November 2021. So how are you guys? I'm hoping you're doing well. And I'm your host, Dr. Seema Jain. I'm a SEBI registered research analyst. I'm a founder and chief mentor at StockPro and partner with Zerodha Upstocks and Fires, Zerodha Upstocks, Fires and Astha Trade. So I am so very impressed in case, like for all those who have listening me for the first time and you don't know where to follow me, this is my Twitter handle and this is my Telegram channel. And of course, which is Stock Pro official, and my YouTube channel is simply Stock Pro with about 32,000 subscribers. I'm really lagging behind in subscriptions. I think it's my channel is the most underrated, and I can promise you the amount of work I do for you all is just phenomenal. I think you all should come forward to support me and share my channel, share my YouTube channel, share my Twitter handle, share my Telegram channel with all the people who are losing money in the stock market, right? So this is my Telegram channel, once again, YouTube channel and my Twitter handle, right? Okay, so अब आते हैं कल के वीडियो के ऊपर जो मैंने कल बोला था कि मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि आपको क्या बेसिक्स ऑप्शंस के बारे में सीखना है, बेसिक्स टू एडवांस, राइट? एंड आई एम सो हैप्पी आई हैव पुट अ कंडीशन कि 100 अगर मुझे कमेंट्स आएंगे आई विल श्योरली डू इट. Now the whole process of the two-way communication has to continue. It's not key. I would like to hear from you. I have read each and every 146 comments, right? And first and foremost, let me address the most important question. Everybody's been talking about Nureka, right? So Nureka is produced not very good result, right? So when a stock doesn't produce good result, the reflection comes into the stock price, right? So stock price is on a, अगर आप मैं आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर देती हूँ, इसका जो सपोर्ट है, जो ग्रैंड सपोर्ट है इसके लिए वो 1455 पे है, राइट? 1455 पे अगर आपको डर लगता है कि आपका, मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस वैसे दिया था, राइट? आप लोगों को स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अगर आई थिंक ये ऐसा स्टॉक था जो मैंने बोला था अगर नीचे जाएगा तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि फंडामेंटली इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है बट रिजल्ट अच्छे नहीं प्रोड्यूस हुए, तो थोड़ा सा इसमें एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, बट अभी भी ये अपने कंसोलिडेशन जोन के अंदर है. आई अगर आपको चाहिए तो मैं इसके फंडामेंटल्स फिर से आपके लिए रिव्यू कर देती हूँ कि कहीं अगर आपको ऐसा लगता हो कि कभी कभी स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन में आ जाता है, बट डजंट मीन दैट एनीथिंग इज रॉन्ग विद, ऐसा कुछ बहुत मेजर रॉन्ग नहीं है. सो 66% इसकी ROCE है और 52% इसकी ROE है, राइट? लुक एट द कंपनीज reduced debt, it's debt free, and consistent return on equity is 54%. Only that drawback one can see here is that it's trading at 7.75 times its book value, right? Then let's come to the sales. If you have a look at the sales, they have, see, there is a dip in the September quarter, right? Probably that is what is reflecting, and there is a drop in the RO, operating profit margin, right? So that is probably is what reflecting in the stock price. But agar aap dekhte ho, let's go further down and see what is happening to the cash from operating activity. It was 35 crores, but what has happened here was also debtor days have definitely gone down. Promoters holding is about 70%, and FII's holding is 13%, right? So मुझे इसमें कोई भी ऐसा नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं लग रहा है. कंपनी ने रिजल्ट्स अच्छे नहीं प्रोड्यूस किए, बट डजंट मीन कंपनी जीरो हो गई है. ऐसा नहीं है, कंपनी जीरो नहीं हुई है. कंपनी ये साइकिल्स है, कभी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, कभी कंपनी बहुत अच्छा नहीं करती है. तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है, बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. आई वुड से कि आप इसको 1455 पे आता है तो थोड़ा सा और एक्यूमुलेट कर लीजिए, और उसके बाद ये फिर चलना शुरू कर देगा. तो आपको
2400 2500 का एक टारगेट जरूर मिलेगा, राइट। तो ये एक मैं क्वेश्चन एड्रेस करना चाह रही थी कि देखो स्टॉक मार्केट में आते हैं, आई नो माई एक्यूरेसी इज वेरी हाई, बट कभी कभी ऐसा होता है कि सर्कमस्टांसेस सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आपने टेक्निकली भी चार्ट को रीड कर लिया है तो यू नो सर्कमस्टांसेस डोंट सपोर्ट, क्योंकि अगर उसी नेक्स्ट फ्यू डेज में रिजल्ट आ गए, रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं होंगे, तो फिर डेफिनेटली उसका रिफ्लेक्शन आएगा। तो एक मेरे को ना एक क्वेश्चन का और आंसर करना है। द क्वेश्चन वाज समबडी हैज रिटन कि बाय अबव क्यों देते हो आप, लाइक व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। एक मिनट में क्वेश्चन को ही पढ़ती हूँ, क्योंकि जो अच्छा क्वेश्चन होता है, जो एक जेन्युइन क्वेश्चन होता है अच्छा कोई बोल रहे हैं, आयुष्मान पांडे जी बोल रहे हैं आप बहुत पॉजिटिव हमेशा लिखते हैं, ट्विटर पे भी और यहाँ पे भी। बोल रहे हैं कि आपकी वीडियोस देखकर ही मैं बाजार में हूँ, नहीं तो कब का लॉस बुक करके निकल गया होता। थैंक यू सो मच। यू नो, अगर मैं बोलूँ ऑनेस्टली, आई एम ऑल्सो हियर बिकॉज ऑफ यू पीपल। इट्स नॉट दैट कि मैं अपनी काबिलियत के भरोसे यहाँ पे हूँ। इट इज यू पीपल हु आर सपोर्टिंग मी। हाउ मेनी पीपल सपोर्ट अ वुमेन इन स्टॉक मार्केट? वेरी फ्यू। आप बड़े बड़े दिग्गजों को देख लो, वो एवरी जो हर एक रैंडम ट्रेडर को इंटरव्यू करते हैं, बट दे डोंट, दे फील कि आई डोंट नो, बट आई थिंक यू पीपल आर रीजन बिहाइंड माय सक्सेस। सो आई ऑल्सो वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, यू नो, व्हिच सेज दैट कि बहुत से लोग बाय अबव क्यों यूज करते हैं, कुछ टेक्निकल कारण है इसके पीछे, बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ, कल एस्कॉर्ट्स का देती हूँ आपको, राइट। बाय अबव का रीजन होता है, क्यों होता है रीजन? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको कल के दिन में बाय करना है, राइट, इसको मैं रिमूव करती हूँ। कल के दिन में अगर हमको बाय करना है, राइट, यस्टरडे की मैं बात कर रही हूँ, ये एक जो जोन था, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। तो सॉरी, ये रेजिस्टेंस जोन था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। अगर हमको कल बाय करना था तो ये 1595 के ऊपर ही खरीदना था। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने भी स्कॉट्स कल बाय के लिए दिया था, क्योंकि अगर स्कॉट्स हमने कहा दिया था स्कॉट्स को, हियर बाय स्कॉट्स अबव 1610, राइट, यहाँ पे दिया था मैंने, और ये मैंने लाइव मार्केट में दिया था, और उससे भी पहले मैंने ना इसको अर्ली मॉर्निंग ही दे दिया था, ये वाला, ये नवंबर 1 को दिया था 1590 के ऊपर। बट कल आई थिंक मंडे को मैंने दिया था स्कॉट्स अबव 1610, राइट, यही दिया था स्कॉट्स। सो ये 1610 के ऊपर क्यों दिया था कि ये 1595 तो इसका बैरियर था। आफ्टर 1595 आई थिंक मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट हो रही होगी, तो ये अगर हम इससे पहले ले लेते, आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर दिखाती हूँ मैं, यहाँ से देखो आप, अगर आप forget about, let me show you with replay, ठीक है। ये हमारा रिप्ले है, यहाँ से ये हमारा एक बैरियर बना है, ठीक है। अब हमको अगर खरीदना है तो इस बैरियर के ऊपर ही खरीदना है, और वो भी दो तीन, अगर 1500 रुपए का स्टॉक है तो आप कम से कम 10 से 15 पॉइंट्स का लेवरेज रखोगे, राइट, क्योंकि स्टॉक को थोड़ा स्टे करना चाहिए उस बैरियर के ऊपर। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं क्या होता है। तो ये नीचे खुला, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा बैरियर क्रॉस नहीं हुआ, हमारा माइंडसेट बाय करने का ही है। अगेन अगर देखो, अब इस बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश की और फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, राइट, तो अबव जाएगा तभी आपको बाय करना है, नॉट बिफोर। अब ये उस नेक्स्ट डे, ये आप देखो नेक्स्ट डे भी सेम बैरियर है, तो अगर बाय अबव करोगे तभी, लाइक जब प्राइस ऊपर जाएगा, और मेरा जो स्टैंडर्ड रूल है वो यही है कि अगर 1500 का स्टॉक है तो 15 पॉइंट्स का मिनिमम मुझको इसमें बाय अबव रखना है, राइट। कई बार स्टॉक जो है थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ जाता है, बिकॉज रेजिस्टेंस वहां से लगना चालू होता है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि
क्यों हम बाय अबव करते हैं? बाय अबव को मतलब रिस्पेक्ट होना चाहिए, अबव अबव वाला पार्ट रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मतलब जैसे यहाँ जाके और नीचे आ गया, यहाँ जाके नीचे आ गया, या मैं आपको इसका एक और रूल भी देती हूँ, बाय अबव अगर मैं बोलती हूँ किसी स्टॉक में, तो आपको देखना चाहिए कि वहां कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉक को रुकना चाहिए। तो ये 10 नवंबर है, 10 नवंबर को 5 मिनट लगा, सॉरी ये तो 5 सेकेंड हो गया, 5 मिनट में देखते हैं क्या हो रहा है। सो हियर वी आर ऑन 10th of November पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। हियर इज 10th of November। सो 10th of November में ये 10th of November है, राइट? 9:15, 9:20, 9:25, 9:30, 9:30 के बाद ये टच करने गया 15 सेम बैरियर को, और फिर 5 मिनट भी उसको सस्टेन नहीं किया है, राइट? एंड देन इसके बाद नीचे आ गया स्टॉक, राइट? तो ये आपको जरूर याद रखना चाहिए कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉक को बाय अबव के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, होप आई हैव आंसर्ड क्वेश्चन। एंड इसके बाद हम चलते हैं आगे के क्वेश्चंस, आगे की जो आज हमारी लर्निंग का प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको ऑप्शन चेन कहाँ मिलती है। सबसे पहले आप जाएंगे, मेरे पास तो सारे पेड वर्जन होते हैं, तो आई गेट इन द लाइव मार्केट अपडेटेड ऑप्शन चेन, बट आपको यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे जाना है, और ओल्ड वेबसाइट पे जाओ आप इसके nscindia.com पे, पूरे ऊपर क्लिक करके एंड गो टू द लाइव मार्केट। लाइव मार्केट से आप इक्विटी डेरिवेटिव पे आ जाओ, ठीक है? अब आपके सामने ये एक ऑप्शन चेन खुल गया है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा आपको छोटा करके दिखाती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। ये ऑप्शन चेन है, राइट? अब एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। अब चलो वो बाद में बात करेंगे, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगी। सबसे पहले आप इस जगह पे देखो, यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट आता है, राइट? अगर इंडेक्स है, अगर कोई स्टॉक है तो वो यहाँ पे आता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में यू विल बी एबल टू सी इट ओवर हियर। यहाँ पे आपके पास एक्सपायरी आती है, राइट? और अगर आपको एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस देखना है तो यहाँ पे आप वो स्ट्राइक प्राइस डाल के भी देख सकते हो आगे की एक्सपायरीज में क्या होने वाला है। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं या फिर निफ्टी की बात करते हैं, विल नॉट टॉक अबाउट फिन निफ्टी बिकॉज इलिक्विड ऑप्शंस होते हैं, वी टॉक अबाउट ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी भी होती है और हर थर्सडे को होती है। और जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है, अगर आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हो तो मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी मंथली ऑप्शंस की होती है। तो देखा जाए तो मोटा मोटा क्या बात हो गई कि हर वीक में एक्सपायरी है और एक मंथ के लास्ट में एक्सपायरी है, ठीक है? द मेन एक्सपायरी इज ऑलवेज द लास्ट एक्सपायरी, द एक्सपायरी ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द मंथ एंड, राइट? अब इसके बाद हम चलते हैं कुछ और बातों पे बात करने के लिए। तो अंडरलाइंग इंडेक्स, राइट? आपको यहाँ जो प्राइस दिखता है वो कैश प्राइस होता है, राइट? दिस इज नॉट फ्यूचर्स प्राइस, दिस इज कैश प्राइस, राइट? और उसके बाद आप देखोगे एक निफ्टी के या बैंक निफ्टी में और एनी ऑप्शन यू विल हैव अ लुक कि कुछ पीला पार्ट होता है और कुछ रेड वाइट पार्ट होता है। So I will explain you in a minute what does this signify. But before that, let's go on to the next part. यहाँ पे चलते हैं। तो what I'm going to do, uh, you will see open interest, right? Now, अगर हम कभी भी ऑप्शन चेन को रीड करते हैं, our only objective is to read it with the view of an option writer. हम ऑप्शन राइटर के व्यू पॉइंट से ऑप्शन चेन को रीड करते हैं। ऑप्शन बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑप्शन चेन को नहीं रीड करते। ये प्लीज आप लोग एक बहुत अच्छे से ध्यान में रख लो। अगर आपने ऑप्शंस खरीदे हैं तो ऑप्शन खरीदने का ज्यादा इम्पैक्ट आपको ऑप्शन चेन पे नहीं दिखेगा। इट्स द ऑप्शन सेलर्स हु मेक द who are basically the when we read the option chain, we read the activity by the writers. So अब ये जो ओपन इंटरेस्ट है इसका मतलब ये है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है यहाँ पे, राइट? और जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे मतलब वो उतना एक्टिव वो स्ट्राइक प्राइस होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी,
अब चलो वो बाद में बात करते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट मींस टोटल ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, या यहाँ पे आज जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। फिर उसके बाद वॉल्यूम्स, राइट, कितने वॉल्यूम्स है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। फिर उसके बाद आईवी है, फिर एलटीपी है, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस है, फिर चेंज कितना हुआ उस लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस में। देन उसके बाद आप बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, and then you're going to talk about the ask quantity, right? So these are the various things that you will read at this side. So अब बीच में मुझे वीडियो रोकना पड़ गया 1-2 मिनट, 5 मिनट के लिए। तो मैं क्या बोल रही थी मैं भूल चुकी हूँ, बट डजंट मैटर। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये ओपन इंटरेस्ट है, राइट। ये सॉरी, फर्स्ट कॉलम जो होता है वो ओपन इंटरेस्ट का होता है, राइट। जितने भी आज की डेट में खुले हुए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे ओपन इंटरेस्ट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये आज के दिन में क्या ओपन इंटरेस्ट में चेंज आया है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि ये आज के दिन में ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। मतलब जो 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए थे ऑलरेडी, मतलब 65,000 जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है उसमें से 32,000 आज लोगों ने लिखे हैं। मतलब 100% इंक्रीज हुआ है ओपन इंटरेस्ट। आप समझे मेरी बात को। 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे या 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे और 32,000 आज लिखे गए। और तो इसका मतलब कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ, ऑलमोस्ट लाइक 100%। जितने थे उतना ही कॉन्ट्रैक्ट्स और लिखे गए हैं। फिर इसी तरह हम और बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की, राइट। ये 37,776 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आज कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं आउट ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स? 24,482। मतलब यहाँ पे केवल 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, आज 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और लिखे गए हैं, राइट। आपको बात समझ में आ रही है मेरी? होप आई एम मेकिंग सेंस। यहाँ पे 116,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं टोटल, उसमें से 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज लिखे गए, राइट। मतलब ऑलमोस्ट लाइक 50% आज लिखे गए। मतलब 100% का इंक्रीमेंट है ऑल ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ से लेके यहाँ से ले लेते हैं हम, यहाँ से इसमें भी 100% का इंक्रीमेंट है। इन सब में अबाउट 100% का इंक्रीमेंट है। इन 4 कॉन्ट्रैक्ट्स में 100% इंक्रीज हुआ है। और हमेशा याद रखिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जा रहे हैं मतलब ये इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं मतलब कि अब मैं अभी आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगी, मैं अभी कल बताती हूँ कि कॉल कॉल और पुट, राइट, इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। आपको ये बात पता है कि कॉल खरीदी जा सकती है, कॉल बेची जा सकती है। पुट खरीदी जा सकती है, पुट बेची जा सकती है। कॉल खरीदते हैं कब? कॉल खरीदते हैं जब आपको लगता है कि स्टॉक को ऊपर जाना है। जैसे अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक को ऊपर जाना है, इसका कॉल ऑप्शन ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि स्टॉक को नीचे आना है, आप इसका पुट ऑप्शन ले सकते हो, राइट। जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर उनको लगता है कि स्टॉक को ऊपर जाना है वो पुट सेल करते हैं, राइट। इसी तरह अगर ऑप्शन राइटर है तो और स्टॉक नीचे जाने वाला है वो कॉल सेल करेंगे। तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हो गई, राइट। वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज। व्हाट आर दोस 4 पॉसिबिलिटीज? लेट मी राइट इट हियर फॉर यू, जस्ट अ सेक। सो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं कभी भी, आपके पास एक व्यू होना चाहिए, ठीक है। आपका व्यू बुलिश हो सकता है, आपका व्यू बेरिश हो सकता है। आप अगर आपका व्यू बुलिश है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आप बाय कर सकते हो कॉल को या फिर पुट को सेल कर सकते हो। किस केस में? जब आपका व्यू बुलिश हो, आपको लगता है कि मार्केट को ऊपर जाना है। जब आपको लगता है मार्केट को नीचे जाना है तो आपका व्यू बेरिश हो गया, राइट। आप उस समय पुट बाय कर सकते हो या कॉल सेल कर सकते हो। अब आप लोगों को आपको इजीली पता है कि कॉल बाय करने के लिए आपको कम कैपिटल चाहिए, जबकि पुट सेल करने के लिए आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि अगर हमने
18,000 की एक लॉट निफ्टी को सेल किया है, ठीक है, और यह हमने पुट बाय किया। पुट कहाँ पे है अभी 18,000 की? पुट की लेटेस्ट ट्रेडेड वैल्यू है अबाउट 93। हम इसको 100 ले लेंगे तो 5,000 रुपीज आपको चाहिए। अगर हमको सेल करना है, ठीक है, एक लॉट को हमको सेल करना है, तो हमको कितना चाहिए? ऑप्शंस निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी पे चाहिए हमको, निफ्टी नवंबर ले लेते हैं। मतलब अब लास्ट वीक तो अभी नहीं है, बट डजंट मैटर। अगर हम कॉल को सेल करते हैं, 18,000 की कॉल को सेल करते हैं, तो हमको कितना पैसा चाहिए? तो हमको चाहिए 1 लाख रुपया, ठीक है, हमको 1 लाख रुपया चाहिए। सो क्या रेशो है हमारा? 5,000 चाहिए आपको केवल बाय करने के लिए, 5,000 चाहिए आपको पुट बाय करने के लिए, ठीक है, और आपको सेल करने के लिए कितना चाहिए? 1,000, 1 लाख, राइट। रेशियो कितना हो गया? 1:20, राइट। एक बंदा आपसे 20 गुना ज्यादा पैसा दे रहा है, तो उसको एडवांटेज मिलेगा ना, राइट, उसको एडवांटेज मिलेगा ना। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि अ, जितना ज्यादा आप लेवरेज लोगे उतना आपका स्किल लेवल हाई होना चाहिए। सो अगर आपके पास स्किल हाई नहीं है तो आपका लेवरेज मिनिमम होना चाहिए। आप ऑप्शन सेल करते हो तो आपको हमेशा, मोर ऑफन देन नॉट, यू विल बी इन प्रॉफिट। सो अगर आपका बुलिश व्यू है तो आप कॉल बाय कर सकते हो, पुट को सेल कर सकते हो। बेरिश व्यू है तो आप पुट को बाय कर सकते हो, कॉल को सेल कर सकते हो, ठीक है। तो होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। तो आई रियली वांट कि आपको इनमें से कोई पॉइंट अभी तक का नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे, डोंट आस्क मी जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, ये मत पूछना कि अभी एटीएम ओटीएम और डीप ओटीएम डीप एटीएम, ये सब कुछ नहीं पूछना आपको। जब मैं वो पढ़ा दूंगी उससे बाद आपको बात करनी है। जो मैं अभी तक आपको करा चुकी हूँ उसके बारे में ही आप बात करोगे, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे जितने ये आज के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर आप इस कॉलम को देखते हो, सेकंड कॉलम को, राइट एडजस्टमेंट कॉलम को, यहाँ पे, तो ये आज के कॉन्ट्रैक्ट्स जितने लिखे हैं वो हमको बताता है। ये इसी तरह हमें जितने भी पुट साइड में, और आप देख लोगे मैं हमेशा हमेशा इन द मनी कॉल ऑप्शन और इन द मनी पुट ऑप्शन को ही देख रही हूँ। तो उसका भी रीजन है, मैं आपको बताऊंगी। बट एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, दिखा देती हूँ। आप एक यहाँ देखिए कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आज अनवाइंड हुए हैं पुट साइड में, राइट। पुट साइड में अनवाइंडिंग हुई है। इसका सिंपल मतलब है कि मार्केट आज थोड़ा सा बेरिश है, राइट। कल कैसा रहेगा कल पता लगेगा, क्योंकि ये चेन मार्केट में डायनामिक होती है, राइट। आज जब ये कॉन्ट्रैक्ट लिखे जा रहे होंगे, किसी को पता होगा लाइव मार्केट में कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जा रहे हैं या यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, एंड उन लोगों ने अपना माइंडसेट बना लिया होगा अपनी पुट्स को अनवाइंड करके। तो और एक और चीज आपको याद रखना चाहिए जो मैं कई बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ, बिकॉज ये नाउ इट्स दीज आर द वीडियोस फोकस्ड ऑन ऑप्शंस, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, राइट। जो लोग ऑप्शन राइट करते हैं वो हमेशा राइट करते हैं, राइट, वो बाय नहीं करते। नो मैटर व्हाट, दे विल नॉट बाय इट। तो अगर उनका व्यू चेंज हुआ है, उन्होंने यहाँ पे अनवाइंडिंग की है, इन लोगों ने जिन्होंने पहले यहाँ पे पुट राइट की है, तो ये कहाँ गए हैं? ये बैंक निफ्टी में भी नहीं जाएंगे। इमेजिन दे विल नॉट चेंज इंस्ट्रूमेंट, दे विल रिमेन इन निफ्टी। यहां से निकल के ये लोग यहाँ पे आ गए, राइट। सिंपली यहाँ से एग्जिट किया और यहाँ पे एंट्री ली है, और फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स भी इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो ये जितने भी लोग आप कॉन्ट्रैक्ट्स को काउंट कर लो कितने हैं ये, 2,000, ये 14,000, 20,000 लगा लेते हैं, 40,000, 40 और 40, 40 और इनको सबको हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, 50-60 के करीब ले लेते हैं, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आज लिखे हुए हैं, इतने, इन सबको कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये भी 50-50 1 लाख, और ये करीब 1,30,000 है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर कि ये जो लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं वो कहीं और नहीं जा रहे हैं, निफ्टी में ही बैठेंगे वो लोग, राइट।
और वहां से यहाँ आ गए। और ये जो चेंज हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड इमोशंस चेंज, चेंज ऑफ इमोशंस, राइट। आई एम श्योर थोड़ा मैं आगे चली गई हूँ, अपनी जो भी बेसिक से शुरुआत तो की है, बट आप लोगों को ये समझाना भी एक जरूरी बात है कि हमेशा याद रखना कि लोग अपने जिस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं उसी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते रहेंगे, राइट। वो अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं चेंज करते। तो क्या चेंज करते हैं? वो पोजीशन चेंज करते हैं। अगर वो पुट राइटर्स थे तो अब वो कॉल राइटर्स बन जाएंगे, ठीक है। अगर उनको लगेगा मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल राइटिंग से एग्जिट करेंगे, पुट राइटिंग में चले जाएंगे। सो ये चेंज ऑफ इमोशंस आज आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा होगा। ओके, अब बात करते हैं एक और बात की कि अब यहाँ पे एक चीज आप देखो कि 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट, 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट, राइट, 92,000 कॉन्ट्रैक्ट। और उसके साथ आप देखो कि कितने वॉल्यूम्स आए हैं, राइट। यहाँ पे 50,000 कॉन्ट्रैक्ट है या 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं, 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं, 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं, राइट। ऑन दिस साइड अगर आप देखते हो तो जो यहाँ पे आप देखोगे तो कोई इस कंपैरिजन में 19 lakh, 15 lakh, 10 lakhs, you don't have any contract like that, except this, you have 13 lakh contracts at 18,100, right? And you have 18 lakh contracts at this place at 18,000. And I'm sure this is part of straddles that people have written. So, and there also the contracts are, not the contracts, but this is the volume, right? So this is still, it is having unwinding. Okay, now एक और चीज मैं आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, so that you don't have any issues regarding that. आपको ये बड़े बड़े नंबर जो दिख रहे हैं ना, ये वाले, राइट, ये सब चीजें ना कोई पेड वेबिनार में ही सिखाता है। nobody will teach you in the normal YouTube. 11,000, 1,16,000 किस पे है? 18,100 पे। 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 18,200 पे। आप जब भी देखोगे 50 के जो मल्टीपल्स हैं उनमें वॉल्यूम्स कम होंगे और उनमें ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट भी कम होगा, राइट। यू मस्ट नोटिस दैट द मल्टीपल्स ऑफ 100 in Nifty and multiples of 500 in Bank Nifty will give you good liquidity, right? So a very important aspect of options is that you should have liquidity. अगर आपके options में liquidity नहीं होगी तो आपको आगे benefit नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं बात की एक्सपायरी की, राइट। तो आप नोटिस करोगे that first month there is, every week there is an expiry. December there is a weekly expiry. You can get the contracts as of now. 30th March, जनवरी के बाद, जनवरी तक आपको जो है 3 महीने के, नेक्स्ट 3 महीने के आपको वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर जनवरी के बाद आपको ऑल्टरनेट मंथ के मिलेंगे, जैसे मार्च, फिर अप्रैल नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद आपको क्वार्टरली मिलेंगे, राइट। तो मार्च इज फर्स्ट क्वार्टर, देन जून, देन सितंबर, देन दिसंबर। फिर दिसंबर के बाद एक साल हो जाएगा, उसके बाद आपको 6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, मतलब दिसंबर के बाद जून, जून के बाद दिसंबर, जून के, लाइक दैट। होप यू गेट माई पॉइंट। पहले 3 महीने के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, फिर क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, फिर 6 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे 22 दिसंबर के बाद, लाइक दैट इट विल गो ऑन। फिर उसके बाद ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, राइट। और थोड़ा हम और आगे जाएंगे और शायद है ही नहीं उसके बाद अवेलेबल, राइट। 2026 के बाद 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये तो बात होगी कॉन्ट्रैक्ट्स की। अब एक और चीज आप देख सकते हो कि जो ये एंड ऑफ द मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट, उनमें लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है। जो ये वीकली अगर आप नोटिस करोगे तो ये शुरू दिन से बहुत लिक्विड होते हैं, राइट। आप एंड दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट देखोगे, there will be a lot of liquidity and a lot of trading will be happening. So यहाँ देखो आप 30,000 contracts have been written. But अगर कोई बीच का आप कॉन्ट्रैक्ट उठा लेते हो, फॉर एग्जाम्पल यू पिक अप 23rd December, so liquidity है ही नहीं, right? You can notice it. So why am I telling you all this detail? Because you should not fall into a trap, right? ये देखो कोई इसमें liquidity नहीं है, but if you go to the end of December, और आप छोड़ो दिसंबर ये वाला,
आप December 22 पे चले जाओ, right? You will find liquidity, right? People are still writing. Imagine 991 contracts have been written at 18,000, right? तो ये liquidity आपको कब available होगी? On these quarterly contracts or the December contracts, right? अगर आपको ये बातें किसी ने बताई हैं या नहीं बताई हैं, and you're hearing for the first time, please write it in the comment box. I'll be happy to hear from you, right? मुझे बहुत खुशी होगी ये सुन के कि आप लोगों को कुछ मेरे साथ नया सीखने को मिल रहा है, right? Same way you have the bank nifty contracts, right? Bank nifty contracts में अगर आप notice करोगे तो जो highest liquidity है वो 38,500, then in 99,000 contracts have been written here. उसके बाद आप देखोगे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट कौन सी वैल्यू पे, 39,000 पे। तो जो 500 के मल्टीपल्स होते हैं उनमें आपको हाईएस्ट लिक्विडिटी मिलेगी, राइट? आप लोगों की एक्सरसाइज है ये। यू विल सिट बैक एंड ऑब्जर्व करोगे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को, राइट? एज आई टोल्ड यू कि जो एंड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपको बहुत आगे का भी दिखा दिया। एक और काम करके देख लेते हैं हम। बैंक निफ्टी में नहीं है ये, शायद निफ्टी में ही अवेलेबल है, राइट? व्हाट आई वाज टेलिंग यू नहीं है। तो बैंक निफ्टी में केवल सितंबर 22 तक के ही कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। अगर आप यहाँ चेक करते हो तो यहाँ पे भी आपको लिक्विडिटी दिखाई देगी दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में, राइट? सो अगर आपको ये पता होगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिक्विड है, यू विल बी, फॉर एग्जांपल हम अबॉट इंडिया को देखते हैं, करंट कॉन्ट्रैक्ट है, इज इट लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट? ऑलवेज रिमेंबर, चाहे ऑप्शन बाय कर रहे हो आप या चाहे ऑप्शन सेल कर रहे हो, द कॉन्ट्रैक्ट्स हैव टू बी लिक्विड, राइट? ये लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, राइट? आप बाय तो कर लोगे बट एग्जिटिंग विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, राइट? बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ इट। आप लोगों को जो सिखा रही हूँ मैं जा चुकी हूँ कई बार। अच्छा खासा मेरा स्टॉक मूव कर गया बट मेरे ऑप्शंस नहीं मूव करे। ये भी थोड़ा इलिक्विड 2014 411 कॉन्ट्रैक्ट्स है। बट इसी की जगह अगर हम एसीसी को देखते हैं तो आपको कितने सारे, इसमें भी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, देखते हैं। और किसी में कोई अदानी में देखते हैं, अदानी विल हैव गुड लिक्विडिटी, इसमें अच्छी लिक्विडिटी है, राइट? या आप रिलायंस में देखोगे तो आपको अच्छी लिक्विडिटी मिलेगी। So 78,000 contracts, right? Highly liquid contract, right? तो ये चीजें आपको अगर पता होंगी तो एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि मुझे इसमें ट्रेड करना है कि नहीं करना है ट्रेड। This is 63 contracts, 63,000 contracts. So these are highly liquid contracts. हमेशा, whether you are an option seller or option buyer, always remember to trade in highly liquid options, right? कभी बहुत attractive भी कुछ लगेगा जब, आई डोंट नो आप लोगों को याद होगा कि नहीं याद होगा, मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपना नेशनल एल्यूमिनियम में 15 लाख का प्रॉफिट शेयर किया था, राइट? मुझे पता है कि मुझे कितना डिफिकल्ट हुआ था उस प्रॉफिट को बुक करना। व्हाई? बिकॉज एंट्री तो मैंने ले ली थी उसमें, बट ये ऑप्शन बैन में चला गया था, राइट? और वंस एन ऑप्शन गोज इनटू द ban period, then there is even lesser liquidity. So, and I had a great tough time. I managed, I was lucky to book my profit of 15 lakh rupees, but I have decided after that, I have been fortunate. एक बार मैं लकी बन रही हूँ, अब मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगी इसके ऑप्शंस में, राइट? तो आई थिंक मैंने आज बहुत लंबा वीडियो कर दिया। अब अगर आगे एटीएम, ओटीएम, डीप एटीएम, डीप ओटीएम और आगे की क्या और इंटरेस्टिंग चीजें हैं ऑप्शंस के बारे में अगर आपको सीखनी है, I would request you to please write a comment box. Again, my yardstick is going to be 150 comments, right? Because 146 have written comments as of yesterday, but I am expecting to cross this number, right? I'm sure you have learned something new with me, and a lot more is coming up. A lot of other things are coming up, but only on a condition that you all will write a comment and really share your thought process about it. Even if I have done something, I haven't spoken something incorrect, you can please write it. I will be happy to rectify my understanding, and probably I may learn something from you. So with this, I'm signing off, but do not forget to follow me on Twitter, on Telegram, and on YouTube channel.
and please like, share, and subscribe. It, the success of this channel only depends on you all. Take care. Good night. If you want me to make a video tomorrow, I'll wait for 150 comments, and the moment I get it, I will make it. Thank you. Take care. Bye bye.